Very good morning and namaskar to my wonderful children of grade 7. I hope you all are fit and fine at home. Great. So, today we will be going to start a new chapter, that is chapter number 4 of history, the Mughal Empire. And you know that this chapter would be the very interesting chapter, as from this chapter only we would be learning that जो आज का इंडिया है वो कहीं ना कहीं इसी मुगल अम्पायर से इन्फ्लुएंस है. So first of all, we all know that Indian subcontinent has diversity of people and cultures. ये तो हम सबको पता है. So it was very difficult task for any of the ruler to accomplish his rule in Indian subcontinent. But if you have remembered grade 6 history, we have seen that कि मौर्यन अम्पायर ने लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था और फिर रीजनल अम्पायर्स आए. बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट द मुगल्स, दे डिड इट इन द अर्ली एज. जो अर्ली 6 मुगल एम्परर्स थे, जो कि बाबर से शुरू होकर और औरंगज़ेब तक के टाइम पीरियड में जितने मुगल एम्परर्स आए थे, उन्होंने अपना पैन रीजनल अम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया था. But beta, now you could ask me that, ma'am, earlier you were saying that it was extremely difficult for any ruler to accomplish his rule on the Indian subcontinent. So how could Mughals manage to do? Let's understand how. So first of all, I want to tell you that from the year 1526 to 1707, Mughal Empire expanded. तो बाबर से इस अम्पायर की शुरुआत होती है और औरंगज़ेब जो थे उनकी डेथ के बाद इस एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया. सो इन दिस चैप्टर वी वुड बी लर्निंग टिल औरंगज़ेब ओनली. Beta, as I have told you earlier that ruling a large territory such as Indian subcontinent is not an easy task, and due to its diversity of people and culture. And you know that no ruler till the starting of the 16th century was able to do it for that much long period of time. Mughals, unlike their predecessors, created and controlled a large empire quite efficiently. And from the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Delhi and Agra, and by the 17th century they were in control of almost the entire subcontinent. They imposed structures of administration and idea of governance on the people that stayed with the people even after their rule ended. And you know, even today the Prime Minister of India addresses the nation on every Independence Day from the Red Fort in Delhi. हम देखते हैं ना, which was once a residence of the Mughal emperors. So let's understand who were Mughals. Beta, the Mughals were descendants of the two great lineages of rulers. तो उनके जो वंशज थे उनके बारे में हम बात करते हैं. अगर हम बात करें कि उनकी मदर साइड से, सो दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over the parts of China and Central Asia, and he died in the year 1227. और अगर हम उनके फादर साइड की बात करें तो दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर. He was the ruler of Iran, Iraq and the modern day Turkey, and he died in the year 1404. But beta, it was a fact that Mughals को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनको कोई मंगोल के नाम से पुकारे. तो उसके दो फैक्ट से सबसे फर्स्ट फैक्ट था कि जो गेंगीज़ खान था उसको एसोसिएट किया जाता है बहुत ज़्यादा मर्डर्स के साथ. हज़ारों की तादाद में उसने लोगों को मारा, तो इसीलिए उनको मंगोल्स के साथ यानी कि गेंगीज़ खान के साथ एसोसिएट करना पसंद नहीं था.
और इट वॉज लिंक्ड विद उज़्बेज देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, और वो उज़्बेज के साथ भी लिंक थे जो उनके मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे, इसीलिए उनको कभी भी पसंद नहीं था कि उनको मंगोल के नाम से पुकारा जाए. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, द मुगल्स वर प्राउड टू देयर टेमुरिड, जो उनका जो तैमूर वंश था उससे बहुत ज़्यादा प्राउड थे, बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन द ईयर 1398. दे सेलिब्रेटेड their genealogy using pictures, each ruler getting a picture made of Taimur and itself. Now dear children, let's talk about the Mughal military campaigns. So beta, Babur, as we all know, the first Mughal emperor जिन्होंने इंडिया पर रूल किया फ्रॉम द ईयर 1529 टू 1530, एंड ही सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरेगना इन द ईयर 1494. और पता है उनकी उम्र उस टाइम कितनी थी? ही वॉज जस्ट ओनली 12 years old. But he was forced to leave his ancestral throne. अब उनको अपने उस थ्रोन से क्यों हटाया गया? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप ऑफ उज़्बेकिस्तान, जैसा कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके क्या थे? कॉम्पिटिटर्स थे. और इधर उधर घूमने के बाद ही सीज्ड Kabul in the year 1504, and in the year 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at the first battle of Panipat and captured Delhi and Agra. Now let's learn and understand about all the great Mughal emperors one by one. So बेटा हम पढ़ेंगे सबसे पहले द फर्स्ट मुग़ल एम्परर विच इज़ बाबर, और जिनका रूल हुआ फ्रॉम 1526 टू 1530. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स at the first battle of Panipat, which I have already told you. In the year 1527 he defeated Rana Sanga, the famous Rajput ruler, and allies at Khuana. And in the year 1528 he defeated the Rajputs, the brave Rajputs, और उनको कहाँ हराया? चंदेरी में हराया. और अपनी डेथ से पहले इसने आगरा और दिल्ली पर पूरा अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दी सेकेंड मुग़ल एम्परर, दैट इज़ हुमायूं. तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था फ्रॉम 1530 टू 1540, एंड आफ्टर दैट 1555 टू 1556. अब आप देख रहे होंगे बीच में 15 ईयर्स का ये जो गैप है ये क्यों था? लेट्स सी. बेटा हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस जो उसको उनके फादर बाबर से मिली थी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल, एंड हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस. और बट उनकी जो एक बहुत ही एम्बिशियस ब्रदर थे जिनका नाम था मिर्ज़ा कामरान, उन्होंने क्या किया? रिबेल करना शुरू कर दिया हुमायूं के अगेंस्ट. तो उसकी वजह से हुमायूं के जो अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे उनके अगेंस्ट हुमायूं जो है वो वीक होते गए. एंड शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन द ईयर 1539, और कन्नौज में 1540 में जो है हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, और जिसके बाद जो है हुमायूं को इंडिया छोड़कर कन्नौज की हार के बाद इंडिया छोड़कर जाना पड़ा. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम Safavid Shah. He recaptured Delhi in the year 1555. तो वो 15 साल तक इंडिया से बाहर कन्नौज की लड़ाई के बाद चले गए थे, और उन्होंने सफ़ाविद शाह की हेल्प से दिल्ली को रिकैप्चर किया इन द ईयर 1555. पर अगले ही साल इन द ईयर 1556 पुराना किला में एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उनकी डेथ हो गई. Now children, let's learn about the next Mughal emperor, that is Akbar. और इनका जो टाइम पीरियड था वो था from 1556 to 1605. And you know that Akbar was only 13 years old when he became the emperor.
तो उनका जो रूल है उनको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है वो है फ्रॉम 1556 टू 1570। बेटा अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैराम खान, जो कि उनके फादर के बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन थे, एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans and the neighboring countries of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and Uzbeks. In the year 1568, the Sisodia capital of Ch.4 was seized, and the year 1569, Ranthambore was seized. Now let's learn about the second period of the Akbar rule, जो कि था 1570 से 1585 तक. तो बेटा इस टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स किए गए गुजरात में, ईस्ट ऑफ बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, और ये जो कैंपेन्स थे दैट वर इंटरप्टेड टू सपोर्ट मिर्ज़ा हाकिम. तो मिर्ज़ा हाकिम के सपोर्ट में इन कैंपेन्स को इंटरप्ट किया गया इन द ईयर बिटवीन 1579 टू 1580. Now let's see 1585 से 1605 तक जो अकबर है उनका एक्सपेंशन कैसे रहा एम्पायर का. तो बेटा इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था अकबर के एम्पायर का, और कैंपेन्स जो थे वो लॉन्च किए गए. नॉर्थ वेस्ट में कंधार सीज़ कर दिया गया. इसके बाद कश्मीर जो है उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया था मुग़ल शासक अकबर ने. और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, काबुल जो था उसको भी अपने कंट्रोल में अकबर ने ले लिया था. एंड कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड, एंड बरार एंड द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर were also captured. But in the last years of his empire, उसके अकबर was distracted by the revelation of Prince सलीम, the future emperor of जहांगीर. जो सलीम जो थे उनका बेटा, उन्होंने अपने ही फादर के अगेंस्ट रिबेल करनी स्टार्ट कर दी थी, जिनको कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है. तो इससे जो थे बहुत डिसहार्टन हो गए थे अकबर. Now children, let's learn about the next Mughal emperor, that is शाहजहां. तो उनका जो एम्पायर था वो था 1627 से लेकर और 1658 के बीच में उनका शासन जो है वो रहा था. तो बेटा मुग़ल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन under the rule of शाहजहां, and the Afghan noble खान जहां लोदी ने रेबल किया था, and he was defeated by शाहजहां only. So campaigns were launched against the अहमदनगर as well. जो बुंदेलास थे और उनको भी डिफीट किया शाहजहां ने, और ओरछा को भी उसने सीज़ कर दिया. एंड अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की, द कैंपेन्स टू सीड बलक फ्रॉम दी उज़्बेज वॉज अनसक्सेसफुल. एंड कंधार में बेटा जो उसकी हार हुई थी वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी हार जो है मानी जाती है, और वो सफ़ावेद के अगेंस्ट उसकी वो हार हुई थी. बेटा इन द ईयर 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर force sued for peace. In the year 1657 and 58 there was conflict over succession amongst शाहजहां son. तो 57 और 58 के बीच में जो नेक्स्ट रूलर के लिए शाहजहां के बेटों में, चारों बेटों में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. एंड औरंगज़ेब वॉज विक्टोरियस, एंड द 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शोक जो कि उनके सबसे फेवरेट बेटे थे, उसको भी वो मार दिया था औरंगज़ेब ने. एंड शाहजहां वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा. नाउ बेटा लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट मुग़ल एम्परर, दैट इज़ औरंगज़ेब. और इनका जो शासनकाल रहा था वो 1658 से 1707 तक के बीच में रहा था. सो बेटा इन द नॉर्थ ईस्ट ही डिफीटेड, यानी कि औरंगज़ेब ने डिफीट किया अहोम्स को इन द ईयर 1663. बट जो अहोम्स थे उन्होंने रिबेल किया 1680s में. एंड कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द
यूसुफ जई एंड द सिक्स वर टेम्परेरली सक्सेसफुल। और इसके अलावा कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वॉज इनिशियली सक्सेसफुल, बट जब औरंगज़ेब ने उनको अपनी सभा में बुलाकर शिवाजी को इंसल्ट किया तो ही एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, और उन्होंने आगरा से निकलकर जब वो पुणे पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रीजन के रूप में या एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में, किंग के रूप में अपने आप को रिज्यूम किया, और ही देन मुग़ल के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन करने शुरू कर दिए। जो औरंगज़ेब का बेटा था, दैट इज़ प्रिंस अकबर, उसने भी औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिबेल किया एंड ही रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत। बट वो जो उसने रिवोल्ट किया था वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और वो जो है अपना किंगडम छोड़कर चला गया, और वो जो प्रिंस अकबर थे वो सफ़ावेद ईरान की तरफ भाग गए। आफ्टर द रिबिलियन ऑफ प्रिंस अकबर, औरंगज़ेब ने आर्मी सेंड करी अगेंस्ट दी डेक्कन सल्तनट्स में, एंड बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। फ्रॉम 1698 औरंग ने पर्सनली डेक्कन के जो मराठास थे उनके अगेंस्ट कैंपेन करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर होना शुरू हो गया था। औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन द नॉर्थ इंडियाज ऑफ सिक्स जाट एंड सतानमीज़, और इसके अलावा उनको नॉर्थ इंडिया में अहोम से ये रेबेलियन मिला और दक्कन में मराठा से। और उनकी डेथ के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद अगला मुग़ल एम्परर कौन बनेगा, इसके लिए उनके बेटों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। Now beta, let's talk about the Mughal traditions of succession. So beta, the Mughals did not believe in the rule of primogeniture. Primogeniture का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि घर के सबसे बड़े बेटे को उस स्टेट का रूल मिलेगा, बट मुगल्स इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, जबकि वो फॉलो करते थे मुगल्स एंड तैमूर कस्टम्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी इनहेरिटेंस और द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल दी सन्स, मतलब सब बेटों में उसको बराबर जो है पिता की जितनी प्रॉपर्टी होगी या पिता का जितना साम्राज्य होगा सब बेटों में बांटा जाएगा। बट हमें एविडेंस ये भी बताते हैं कि देयर वर रिबेल बाय मुगल प्रिंसेस अमंगस्ट ईच अदर। तो कोई ये नहीं देखता था कि मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है, या आपस में भाई आपस में लड़ते थे, या बेटा अपने फादर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता था और वो उनको मार के पूरा स्टेट कब्जा करने की कोशिश करते थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मुगल्स का रिलेशन कैसा था अदर रूलर्स के साथ। So beta, the Mughal rulers campaigned continuously against the ruler who refused to accept their authority. But जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होना शुरू हो गए, रूलर्स ने उनको अपना वॉलंटरी जो है वो वॉलंटरी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजपूत्स। एज मैनी ऑफ देम मैरीड देयर डॉटर्स इनटू मुगल्स फैमिली एंड रिसीव्ड हाई पोजिशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछुआ प्रिंसेस, और जो शाहजहां थी उनकी मदर जो थी वो राठौड़ की प्रिंसेस थी, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ फ्रॉम जोधपुर। But beta, not all agreed for this. Some resisted as well. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिसोदिया राजपूत जो कि मेवाड़ के थे। They refused to accept Mughal authority for a long time. And once defeated, जब एक बार वो हार गए completely, they were treated honorably by the Mughals, given their land, जिसको कि वतन जागीर के नाम से जाना जाता था। The careful balance between the defeating but not humiliating their
opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. It was difficult to keep the balance at that point of time. और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि औरंगज़ेब ने शिवाजी को एक बार अपनी सभा में बुलाकर इंसल्ट किया था। तो काफ़ी रूलर्स ऐसे थे जो इस स्ट्रैटेजी में बिलीव करते थे कि जीतने के बाद भी उन्हें अपना मित्र बनाया जाए, और काफ़ी रूलर्स ने ऐसे किया जैसे औरंगज़ेब ने किया कि शिवाजी को अपनी सभा में बुलाकर उनका इंसल्ट किया, और उसके बाद शिवाजी ने अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। Now let's understand about the Mansabdars and Jagirdars in the Mughal Empire. Beta, as the empire expanded to encompass different region, the Mughal recruited diverse bodies. तो ये छोटा सा एक साम्राज्य था जो टर्किश एम्पायर था, तुर्की से लोग आए थे। उन्होंने ईरान्स, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफ़गान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स को उन्होंने मुग़ल सर्विसेज के लिए ज्वाइन किया और उनको एनरोल करवाया एज अ मनसबदार। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, या फिर एक पोजीशन या रैंक को होल्ड करता है। तो उसको कोई एक पर्सन जो एक पोजीशन या रैंक को होल्ड करता है उसको मनसबदार के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरीज एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. And you know, the Mansabdar's military responsibility required him to maintain a specific number of sawars. और Mansabdar जो थे, they received the salaries as revenue assignment called as jagirs, which were somewhat like इक्ताद्स। जो इक्ताद्स हमने पढ़ा है, जो हमने दिल्ली सल्तनत में एक तरह से जो दिया जाता था टैक्स के रूप में, उस तरह से उनको वहाँ से अपनी सैलरी जो है मिलती थी। बेटा, इफ़ विल सी इन अकबर रेंज, these jagirs were carefully asserted so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. But अगर हम comparison करें by the Aurangzeb range, तो this was no longer in the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. And Aurangzeb was unable to control the developments in the last year of his reign. And जो peasants थे वहाँ के, तो उनको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। Now let's learn about the terms of zabat and zamidars. Beta, the main source of income available to Mughal ruler was tax only on the produce of peasantry. इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो था, जो टैक्स दिया जाता था रूलर्स एलिट्स को, वो दिया जाता था थ्रू हेडमैन और दी लोकल चीफ्टेन। मतलब कि एक मीडिएटर होता था, चाहे वो हेडमैन हो चाहे वो लोकल chieftain हो. And the Mughals used the term zamidars to describe all intermediators. तो ये जो local chieftains होते थे या headmen होते थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? जमींदार. Whether they were local headmen or the village or the powerful chieftain. और जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उन्होंने 10 इयर्स तक, जो टाइम पीरियड था 1570 से 1580 के बीच में, केयरफुली सर्वे किया ऑफ द क्रॉप्स, प्राइसेस, एरिया, कल्टीवेशन 10 इयर्स तक किया, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा टैक्स वाज fixed off on each crop in cash. Each provinces was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops.
So my dear children, I hope by the end of this video you all have understood about the Mughal Empire. So let's revise what we have learnt in this video. So beta, we have learnt in this video that who were Mughals, कहाँ से आए थे, इनके किस तरह के military campaigns ये चलाते थे. We have also learnt about all the Mughal emperors started from Babur, Humayun, then Akbar, then Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. इसके बाद वी हैव लर्न what are the Mughal traditions of succession. इसके बाद we have understood that what kind of relations Mughals had with the other rulers. इसके बाद हमने मनसबदार और जागीरदार्स के बारे में पढ़ा और ज़बद और ज़मींदार के बारे में भी we have understood through this video. So I hope you all have understood this video well. So complete your PDF file and listen this video one more time so you could understand the chapter in the better way. So see you in the next video beta. Bye bye.